ऑलराइट, सो टिल यस्टरडे जहां पर हम पहुंचे थे, दैट इज अबाउट द फैक्टर्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म is diploid organism, right? Higher organism. Which are diploid. So as we know, there is one male gamete, there is one female gamete, there is a fusion of these two called fertilization. So the zygote which is formed carries two sets of the chromosome, hence two sets of the DNA, hence two sets of the genes. Fine, so we have a set of chromosomes, or else we have set of chromatin, or else we have set of DNA, or we have set of genes. So any single gene, we are not having one copy of it, we have two copy of it. One you are receiving from your male parent, that is father. One you are receiving it from your female parent, that is the mom. So you have two copies of genes. I hope I am very clear with this, right? Okay. Now with keeping that in mind, keeping that phenomena in mind, we have these three new terminology for you. First term is the allele. You have two genes, maternal, paternal. So actual gene is one, but you have two different form of it. One is maternal one is paternal one, and that's the alternative forms of a gene. And the terminology what we are using for them is the allele or allelomorph. Say for example, standard 10, tall plant, dwarf plant. So character is one, the height of plant, but you have two different types of form of that. One is long or tall plant, one is short, that is dwarf plant. So capital T, what the unit what we are replacing with tall. So we are using capital T for it. Dwarf, we are using small t as a character to denote particular phenomena, particular character. So capital T or small t are two different allele factors for a gene which is denoting the character of height. Fine. So what is meaning of allele? I hope you are very clear with this. है ना? Okay. Now if one more thing what we are supposed to remember is, when I am saying you are receiving two pair, one is from maternal family, one is from paternal family, so it is always line pair. So you have two, any of the gene you are having it into the pair. Now if the pair consists similar type of allele, then it is called homozygous, right? Say for example capital T, for example small t. So if they both are either dominant or recessive, it is said to be as homozygous. Ready? Okay. One is dominant, one is recessive, and if they both are found together,
it is called heterozygous. They are not similar, they are dissimilar. So it is the condition in which the chromosome pair carries dissimilar alleles of a gene, then it is called heterozygous. If it carries similar alleles, then it is called homozygous. So capital T small t, capital Y small y, capital R small r, they are heterozygous. Capital T, small t, capital R, small r, capital M, small m, they are homozygous. So 3 words: allele, homozygous, heterozygous. Few more into the list. Dominant character, not trait, not factor, not gene. Dominant character. So the character which is expressed in heterozygous condition, it is called dominant character, and it has to be indicated with the capital letter. Fine. आगे आगे जाएंगे तब पता चलने लगेगा ऑटोमेटिकली. अभी सिर्फ देख के याद रखना है कि वो क्या बोलने जा रहे हैं, क्या समझाने जा रहे हैं. ओके, व्हेन इट इज इनटू द हेटेरोजाइगस स्टेट, एक्सप्रेस होता है, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर. एक्सप्रेस नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर. सो इट इज द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड into the heterozygous condition. It is indicated with the small letter. So if, say for example, it is capital T small t, right? If it is capital T small t, let me conclude what I want to highlight here. In 10th standard, this meant tall plant, right? This meant dwarf plant, and this capital T small t. याद है? बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं. Okay, tall plant. It is also a tall plant. So this is homozygous, this is heterozygous. अब देखते हैं कि अगर कैपिटल टी है तो वो होना चाहिए टॉल, स्मॉल टी है दोनों तो वो होना चाहिए ड्वार्फ. तो टॉलनेस के लिए कैपिटल टी ही रिस्पॉन्सिबल है, ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है. एम आई वेरी करेक्ट? तब यहां पर अब देखते हैं तो दोनों है, बट एक्सप्रेस तो एक ही हुआ है ना, दोनों में से एक ही, दैट इज टॉलनेस. तो टॉलनेस इज डोमिनेंट trait, and small t, which is a dwarf plant, so dwarfness is a recessive expression, what we say. So कैसे हम किसको इंपॉर्टेंस देना है? जो एक्सप्रेस होता है उसको. तो यहाँ पे एक्सप्रेस दोनों में से कौन हुआ है? टॉल. टॉल कैरीज कैपिटल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी जो है डोमिनेंट है, स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव ट्रेट है. I hope I am very clear with these. Okay. All right. अभी मैंने लिखा था कैपिटल टी इज इक्वल टू टॉल प्लांट, करेक्ट? स्मॉल टी इज इक्वल टू ड्वार्फ प्लांट, कैपिटल टी इज इक्वल टू टॉल प्लांट. तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी क्या थे, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप. It is जीनोटाइप. जीन्स, कैपिटल टी जीन है, स्मॉल टी जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी जीन्स है, तो वो जीनोटाइप है. जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर है. बट अगर मैं लिखता हूं टॉल प्लांट है, अगर मैं लिखता हूं ड्वार्फ प्लांट है, तो वो फिजिकल एक्सप्रेशन है. वो कैसा दिखता है? टॉल दिखता है, ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट दिखता है. तो इट इज अ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर. दिस इज जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट.
तो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। सो कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी में लिखता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, जीनोटाइप। उसकी जगह पे मैं लिखता हूं टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, तो उसको मैं बोलूंगा फिनोटाइप। क्लियर? ऑल राइट, लास्ट वर्ड विच इज गिवन हियर इज हाइब्रिड। तो हाइब्रिड हमने डिटेल में स्टडी किया था इनटू द लास्ट चैप्टर व्हाट वी हैव स्टडीड। हाइब्रिड कि अगर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज के प्लांट है, उसके दो गेमेट्स को मैंने फ्यूज किया, राइट, आर्टिफिशियली मैंने सिलेक्ट किया कि एक की मैं पोलन ग्रेन ले रहा हूं और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर मैं उसको स्प्रिंकल करूंगा, मैं करूंगा। तो मैंने वहां पे एक वर्ड आपको दिया था, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इफ यू रिमेंबर। अगर नेचुरली होता है कि कोई एक फ्लावर में से पोलन ग्रेन रिलीज होके कोई अपने आप दूसरे फ्लावर के ऊपर गिरी, तो वो दोनों पेरेंट को नेचर ने सिलेक्ट किया था, आपने नहीं किया था। नेचर सिलेक्ट करेगा ना दो पेरेंट को, उनको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन यहां पे मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे इस प्लांट के ये फ्लावर में से पोलन ग्रेन को लेना है, ये दूसरे प्लांट के ये फ्लावर के ऊपर, उसके स्टिग्मा के ऊपर मैं उसको स्प्रिंकल करूंगा। तो ये मैं डिसाइड कर रहा हूं ना, तो इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ह्यूमन मैन मेड सिलेक्शन है वो। फाइन। सो ऐसी प्रोसेस जिसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, ऐसे क्रॉसिंग को हम बोलेंगे हाइब्रिड। सो एन इंडिविजुअल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट, दो अलग अलग पेरेंट है, उसका मेटिंग करवाया गया है, एंड जनरेशन को प्रोड्यूस करवाया गया है, तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। दो पेरेंट थे, दोनों जेनेटिकली डिससिमिलर थे, सिमिलर नहीं थे। फाइन, कोई डाउट? हमने अभी तक सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को ही सीखा है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे, दैट इज ट्रूली वी आर नाउ एंगेज्ड इनटू द चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट विथ the great man which is shown here, the Gregor Mendel, father of genetics, who has given the principle of inheritance, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। फाइन। अगर आप देखो यहां पर बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, जहां पर चर्च के बैकग्राउंड का गार्डन है, जिस गार्डन के ऊपर छोटे से प्लांट उगे हैं, जो पी प्लांट है, वटाना पी प्लांट है, और जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। सो ये ग्रेगर मेंडल सर है। ही यूज्ड टू बी अ प्रीस्ट इनटू द चर्च, चर्च के प्रीस्ट थे वो। तो शायद आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो तो कि चर्च के अंदर क्या होता है, प्रीस्ट लोग के पास एक बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं कन्फेशन बॉक्स, है ना। कन्फेशन बॉक्स में क्या होता है, वहां पर वो प्रीस्ट बैठते हैं और आपके मेरे जैसे लोग जो होते हैं, राइट, अगर उसने कुछ गलत वलत कर दिया है, सही फॉर एग्जाम्पल, वहां पे जाकर कन्फेशन करते हैं कि भाई मुझे माफ कर दीजिएगा भगवान, मेरे से ये गलती हो गई, तो गुरुजी आप ही गाइड करे। तो गुरुजी उसको सुनते हैं, बाद में उसको बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आपसे हर एक आदमी से गलती होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, चलिए आप ऐसा कर दीजिएगा कि गाय को खिला दीजिएगा, चकली को चण नाख दीजिएगा, है ना, तो आपका पाप धुल जाएगा, काइंड ऑफ दैट। तो ऐसे सलाह सूचन देते थे। तो वहां पे बैठे बैठे उनको विचार आया है कि यार ये कैसी अजीब चीज है कि ह्यूमन वैसे देखा जाए तो एक अलग अलग प्रकृति का कैसे है, वाई दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दे हैव। वहां से ये उसके दिमाग में आया। देन ही थॉट ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स कि चलो देखते हैं दूसरे। तो उसने देखा कि सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन कोई ना कोई तो डिफरेंस होता ही है। अगर चार गाय को आप देख लो तो चारों चार एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी तो नहीं है। देन ही थॉट कि ये क्या है, क्या ये चीज, भगवान ने ऐसी चीज बनाई क्या है।
तो उसने जो डिसिमिलरिटी देखी उसको उसने नाम दिया वेरिएशन। तो वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो ऑब्जर्व किया उसने, पॉइंट टू बी नोटेड, हम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली कि भाई से फॉर एग्जांपल एक एग है, एग हेन का है, तो वो जब टूटता है तो उसमें से हेन का जो पीहन है वो जो अंडा देती है पीहन, वो जब टूटता है तो चिकन ही बाहर निकलेगा ना, उसमें से चकली का बच्चा तो बाहर नहीं निकलता है। वो एक ऑब्जर्वेशन का मैटर है ना कि भाई वो कैरेक्टर उसके अंदर डालता कौन है कि इसमें से जो निकलेगा वो चकली का बच्चा नहीं होने वाला है, चिकन ही निकलना है उसको, हाथी का बच्चा उसमें से नहीं निकल। कौन वहां पे जाके कैरेक्टर को डालता है। सो वो भी एक सोचने वाली बात थी जो उसने ऑब्जर्व की कि हाँ भाई ऐसा भी है। सो दैट्स व्हाट द थॉट मेड हिम क्रेजी फॉर द रिसर्च ऑफ जेनेटिक्स। तब जेनेटिक्स था ही नहीं जब उसने ऐसा सोचा। इट वॉज नथिंग कॉल्ड सेल, इट वॉज नथिंग कॉल्ड न्यूक्लियस, इट वॉज नथिंग कॉल्ड डीएनए, इट वॉज नथिंग कॉल्ड जीन्स, कुछ था ही नहीं तब। बट उसने सोचा तो सही कि मुझे इसके बारे में जानना तो है कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो मेरी है तो वो तो मेरे फादर्स या मेरे मदर्स में से ही मुझे मिली है। ऐसा ऑब्जर्वेशन उसने किया। मैंने जब बोला कि उसने जो एग ब्रेक होता है देखा कि भाई अगर चिकन निकलता है उसमें तो वो तो उसके पीहन या तो हेन का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेके बाहर निकलता है, मींस फोर फादर्स में से ही उसको ये सब मिला है। तो वो कैरेक्टर्स फॉरवर्ड होते कहां से है, कैसे है, क्यों होते हैं, वो इंक्विजिटिवनेस उसके अंदर बढ़ने लगी ज्यादा। तो विथ दैट पर्सपेक्टिव उसने सोचा कि अगर मुझे इसको ऑब्जर्व करना है तो, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मुझे उसका ऑब्जर्वेशन करना है तो मुझे मल्टीपल जनरेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? एक जनरेशन में उसका पता नहीं चल सकता है, मल्टीपल जनरेशन। तो जिसका मुझे ऑब्जर्व करना है उसकी लाइफ स्पान अगर लंबी है, से फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, हमारी लाइफ स्पान है 100 ईयर्स, राइट? तो कितनी जनरेशन आप स्टडी कर सकते हो मैक्सिमम। अगर फॉर एग्जाम्पल के अभी कोई आदमी जिंदा है जिसकी एज 70 ईयर है, उसके बेटे की सही फॉर एग्जाम्पल 30-40 ईयर है, और उसके बेटे की सही फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर है। अब उसका तो बेटा होगा नहीं ना 20 ईयर वाले का, तो मैक्सिमम आप 3 जनरेशन स्टडी कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बट जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में तो क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए, मल्टीपल वेराइटीज चाहिए, जनरेशन 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 जनरेशन, कितने कैरेक्टर को एक साथ रख के आप स्टडी करना है आपको। तो उसने बोला कि चलो ऐसी कोई ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं, एंड काफी सारा सोच विचार करने के बाद उसको ये भी लगा कि उसको तो मुझे ग्रो भी करना पड़ेगा ना। तो एनिमल होगा तो मैं कैसे ग्रो करूंगा, प्लांट है तो इजी है, तो उसने प्लांट पे सिलेक्शन किया, राइट? प्लांट में भी वैसा सोचा कि शॉर्ट लाइफ स्पान हो, राइट, एंड कम कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर का एक माप होना चाहिए। अबे ह्यूमन के बारे में सोचो, कितने कैरेक्टर्स है, कोई पता चल सकता है कि हमारे कितने कैरेक्टर है? यू नो, वी कैन नॉट इवन ऑब्जर्व सम कैरेक्टर व्हाट वी हैव, अपनी कैपेसिटी से बाहर है, उतने कैरेक्टर्स है हमारे। तो इतनी लंबी लिस्ट को कौन कंपेयर कर सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। तो काफी सारा सोच विचार करने के बाद उसको एक कॉमन सा प्यारा सा इजीएस्ट, जो हम जिसको केयर करे बगैर उगा सकते ऐसा उसके दिमाग में नाम आया, वो था पी प्लांट। ये मेंडल का पी प्लांट है यहां पर, राइट? यहां पे एनलार्ज करके दिया है आपको, ये पी प्लांट। तो पी प्लांट के ऊपर उसने पसंदगी रखी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सो मेंडल हैव कंक्लूडेड सम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या करा उसने? हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट करे उसने। किसके ऊपर करे? गार्डन पी, दैट इज पाइसम सटाइवम, consecutively for 7 years. MCQ 1856 to 1863, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? 7 साल तक उसने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट जो किए उसमें
उसने जिस प्रिंसिपल्स को यूज किया वो प्रिंसिपल्स का लिस्ट है। यहां पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्नोलॉजी, किसको याद है? इमस्कुलेशन टेक्नोलॉजी एंड बैगिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात की थी ना, एग्जैक्टली वही टेक्नोलॉजी यहां पर उसने यूज करी है। तो उसने क्या क्या किया है, 4 मेन पॉइंट ऑफ व्यू जिसको उसने स्टडी में यूज किया है। नंबर 1, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उसने खुद ने नक्की किया कि ये मेल पेरेंट होगा, ये फीमेल पेरेंट होगा। तो सिलेक्शन पहला, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। 2 पी प्लांट कंसिडरिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक अगर टॉल प्लांट है तो दूसरा ड्वार्फ होगा, याद आ गया? राइट? एक कोई और कैरेक्टर का है तो सामने वाला दूसरा और उसके कॉन्ट्रास्टिंग मींस उससे उल्टा कैरेक्टर, एक व्हाइट है तो दूसरा ब्लैक होने वाला है, लाइक दैट। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले 2 प्लांट को उसने सिलेक्ट किया था। राइट? ओके। पॉइंट नंबर 2, मैंने जो आपको बात की थी इमस्कुलेशन वाली, वो कि अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है से फॉर एग्जांपल, तो उसमें एंथर को रिमूव कर देना है। यहां पर आई थिंक डायग्राम भी है, ये रहा। तो ये पी प्लांट का फ्लावर है, उसमें आप देखते हो कि ये सीजर है, सीजर से वो एंथर को रिमूव कर रहे हैं। फाइन, तो उसको बोलते हैं इमस्कुलेशन। अब वही सेम फ्लावर को आप फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट कर रहे हो बाइसेक्सुअल में से। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। अब वो जो फीमेल फ्लावर था उसको आपको बैगिंग करना है, बैग चढ़ा के रखना है, व्हाइट पेपर की बैग, पॉलीथीन की ट्रांसपेरेंट बैग नहीं, वो भी मैंने बोला था आपको, ब्रीथेबल होनी चाहिए, अदरवाइज फ्लावर विल डाई विदाउट ऑक्सीजन। सो इमस्कुलेशन एंड बैगिंग, दैट इज सेकंड नंबर प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल, खुद ने पॉलिनेशन किया, एक का पोलन ग्रेन उठाकर दूसरे में उसने खुद ने रखा है, पॉलिनेशन का वेक्टर खुद बना है वो। राइट? सो ही कलेक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पेरेंट एंड ट्रांसफरिंग इट टू फीमेल पेरेंट, वो खुद ने किया है। एंड लास्ट, कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। पॉलिनेशन करा, से फॉर एग्जांपल मैंने पोलन ग्रेन को उठाया, मैंने स्टिग्मा के ऊपर स्प्रिंकल किया, तो बाद में वो स्टिग्मा का क्या होगा, वहां पे जर्मिनेशन होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, वहां पे फ्रूट बनेगा, वहां पे सीड्स बनेंगे। करेक्ट और नॉट? तो वो प्लांट में से जब मैं उसका फ्रूट, उसके सीड को कलेक्ट करूंगा, तो वो ये है कलेक्शन ऑफ सीड। सीड को कलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, रख दूंगा। जब मुझे लगा कि मुझे नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, तब वही सीड उठा के मैं उसको इम्प्लांट करूंगा, उसी में से मुझे मिलेगी नेक्स्ट जनरेशन। राइट और रॉन्ग? है ना? सो कलेक्शन भी किया सीड्स का, और जर्मिनेशन के लिए जब जरूरत पड़ी तब उसने यूज किया। तो ये 4 मेन स्टेप्स जो है उन्होंने यूज करे हैं उसके हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में। फाइन, यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑल राइट, आर यू श्योर यू आर नॉट हैविंग प्रॉब्लम? है ना? ओके, गुड। लाइफ लॉन्ग जो उसने 7 साल कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट करे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर को लेके, तो उसने पी प्लांट के अंदर 7 डिफरेंट कैरेक्टर को स्टडी किया। कितने कैरेक्टर्स मिले उसको? 7 अलग अलग कैरेक्टर मिले। अब कौन से देखिए, एक स्टेम हाइट, स्टेम की हाइट या तो टॉल होनी चाहिए या तो ड्वार्फ होनी चाहिए, 2 ही मिले। फ्लावर की पोजीशन, कहां पे फ्लावर उगता है, या तो एक्सियल होता है या तो टर्मिनल होता है, मींस या तो एपिकल बड में या तो लेटरल बड में प्रोड्यूस होगा। क्लियर? यस और नो? ऑल राइट। थर्ड, फ्लावर का कलर, या तो वो वायलेट फ्लावर प्रोड्यूस करेगा या तो व्हाइट फ्लावर ही प्रोड्यूस करता है। फाइन, ये 3 कैरेक्टर देखिए। पहले मैं पीछे यहां पे डायग्राम के अंदर आता हूं, तो पहला वाला ये टॉल या होगा या तो वो ड्वार्फ होगा। दूसरा देखिए यहां पर ये एक्सियल फ्लावर है, साइड में उग रहे हैं, और ये एपिकल टॉप में उग रहे हैं। 2 में से एक क्या, या तो एपिकल बड या तो लेटरल बड में से वो प्रोड्यूस होंगे। थर्ड कैरेक्टर, या तो फ्लावर होगा वायोलेट कलर या तो फ्लावर होगा व्हाइट कलर का।
डन। ओके, फोर्थ नंबर ऑफ कैरेक्टर पोड। पोड मतलब सिंग, तो उसके दो कैरेक्टर है, आप देखिए। पोड का शेप भी है, पोड का कलर भी है। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये पोड सिंग जो होती है या तो पूरी फूली हुई है, फुल, या तो ऐसे वो मणका मणका जैसी है, कंस्ट्रिक्टेड। डन, समझ में आ गई बात पूरी, है ना। कलर में डिफरेंस भी देख सकते हो आप, या तो वो ग्रीन रहने वाली है या तो वो येलोइश दिखने वाली है। दो ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको मिलेंगे। अब लास्ट दो जो है वो सीड के ऊपर गए हैं। सीड, सीड का शेप एंड सीड का कलर। तो ये नीचे है आपके सामने। सीड का ये शेप है पहला, या तो वो राउंड होने वाला है या तो वो रिंकल रहने वाला है। कलर, या तो वो ऑरेंज, सॉरी येलो रहने वाला है या तो वो ग्रीन रहने वाला है। सो दिस आर 7 डिफरेंट contrasting character which is getting studied by मेंडल। उसने नाम दिया है 7 ट्रू ब्रीड वेराइटी। ट्रू ब्रीड वेराइटी। अब ट्रू ब्रीड वेराइटी में, ट्रू ब्रीड का मतलब मैं अभी आपको नहीं समझा पाऊंगा। आप क्या अभी बहुत थोड़ा सा आगे जाएंगे उसके बाद ही समझ में आएगा। तो हम सिर्फ उसको याद रखेंगे अभी, 7 ट्रू ब्रीड वेराइटीज। अब ट्रू ब्रीड का मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होना चाहिए या तो क्या है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल नाउ, है ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट। अब उसने यहां पर जो एक क्लासिफिकेशन करके आपके सामने रखा है वो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये कैरेक्टर है और ये दो उसके ट्रेट्स है। एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रिसेसिव ट्रेट है। ट्रेट मतलब एक्सप्रेशन, एज आई सेड अर्लियर। ट्रेट का मतलब क्या है? वो एक्सप्रेशन है, फॉर्म है कैरेक्टर का। तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी। ज्यादा है तो टॉल है, कम है तो ड्वार्फ है। तो उसमें से डोमिनेंट वाले पहले रो में है, कॉलम में, सॉरी, सभी डोमिनेंट पहले कॉलम में है। उसके सामने कॉन्ट्रास्टिंग रिसेसिव जो है वो सेकेंड कॉलम में है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू विथ रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हाइट में टॉल इज डोमिनेंट, ड्वार्फ इज रिसेसिव। सेम वे सभी में, से फॉर एग्जांपल लास्ट सीड कलर, येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। ऑल राइट, ओके। इस टाइम मैंने ये पीपीटीज के अंदर टेक्स्ट बुक को भी इन्वॉल्व कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने, जब हमारी 11th में शुरुआत हुई थी और मैंने 9th चैप्टर को आपके सामने रखा था, तो आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड थे कि सर पहले ये लेते हैं पॉइंट, बाद में अपने हिसाब से इसको 2-4 पॉइंट्स को लीव करके 6th पॉइंट पे चले जाते हैं, काइंड ऑफ दैट। यहां पे भी ऐसा होने वाला है। यहां पे भी ऐसा थोड़ा बहुत तो रीशफलिंग मैं करूंगा, बट कहां से करूंगा, वो पॉइंट कहां दिया है मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा यहां पर कि देखिए भैया यहां पे है वो पॉइंट, है ना। मैंने मंगल ग्रह से उसको नहीं उतारा है, वो यहीं पे दिया गया है। आपको मैं इंडिकेट करता जाऊंगा, जहां जहां जितना जितना हम चलाने वाले हैं उतना उतना मैं आपको इंडिकेट करता जाऊंगा कि हम लोग यहां पे है, या तो यहां पे पहुंचे हैं, या तो हमने यहां तक स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने अभी तक पढ़ा वो हमने यहां तक पूरा किया है, यहां तक। ये दिस इज द लास्ट पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, करेक्ट और नॉट? ये डायग्राम भी मैंने अभी आपको आपके सामने रखा था, ये डायग्राम, ये वाला, इतना हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। ये मैं इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं, अभी साइड में रख के बात का। फर्स्ट पॉइंट अपना ये है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमने इतना, ये एक पैराग्राफ हमने ऑलरेडी फिनिश करा है। राइट, इतना हमने
अभी पढ़ लिया है। ये एक पहला पॉइंट अपना फिनिश होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, गुड। मैंने जो बोला था डोमिनेंट ट्रेट किसको बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट किसको बोलते हैं, ये सब यहाँ पे सेपरेटली दिया गया है आपके सामने। यही से मैंने डायग्राम उठा के उस टेबल के ऊपर रखी थी, जो टेबल मैंने आपके सामने अभी स्लाइड्स में रखा था वो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारे लिए क्या होगा, ये वाला पहला उसका एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करे थे, राइट? तो चलिए आपका ध्यान अब यहां पे मुझे चाहिए। मैंने आपको बताया कि उसने कोई भी कैरेक्टर जो उसने स्टडी किए थे, जो 7 कैरेक्टर उसने स्टडी किए थे, उसने सिर्फ स्टडी नहीं करा है, उसने आइडेंटिफाई करके नक्की करा है कि इसको मैं डोमिनेंट बोलूंगा और इसको मैं रिसेसिव बोलूंगा। दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू वेयर वी आर राइट नाउ रीच्ड एट। हम यहां पे पहुंचे कि हमें ये देखना है कि मेंडल ने कैसे नक्की करा कि इसको मैं डोमिनेंट बोलूंगा और इसको मैं रिसेसिव बोलूंगा। आप कर सकते हो, यस आप भी कर सकते हो। उसने कैसे किया, चलो अब देखते हैं उसने कैसे किया, सो दैट अगर आपको करना पड़े तो आप भी कर सको। तो अगर मुझे लेना है कोई एक कैरेक्टर और मुझे देखना है कि इसके दोनों ट्रेट्स में से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, उसके लिए जो मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, उस एक्सपेरिमेंट को मैं बोलूंगा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। बट उस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है, ये तो फिनोमिना का नाम है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक्सपेरिमेंट का नाम जो है उसको बोलते हैं हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। चलो तो हम वहां पे जाते हैं अब। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये फेनोमिना है, ये घटना है, और ये एक्सपेरिमेंट का नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट? मोनो मीन्स वन। आई रिपीट, मोनो का मतलब क्या होगा? वन। क्या वन? क्या वन? क्या बोलिए, हाँ बोलो बोलो। अगर मैं आपके सामने एक लॉजिक रखूं कि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तब जीन नाम का कोई वर्ड एग्जिस्टेड ही नहीं था। एम आई राइट और रॉन्ग? तो वो उसने उसको वन जीन को इनहेरिटेंस करना, वो उसने तो नाम रखा ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो? तो वो एक क्या था जो सोचा था मेंडल ने। मैं ये जो लिखा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मेंडल ने क्या नक्की करा होगा कि मुझे ये देखकर, यस बूझ, कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स, यस, एक कैरेक्टर को कंसीडर करना है। देखो यहां पे है समझने वाली बात, ये बोलते हैं समझने वाली बात। एक कैरेक्टर को उसने देखा, सेंटर में रखा, राइट? उसको उसने कंसीडर करके एक्सपेरिमेंट करा है। तो वन कैरेक्टर के लिए अभी हम तो एडवांस लेवल पे है ना जेनेटिक्स के, तो हमें पता है कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है, इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उनको नहीं पता था, जीन नाम का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस टाइम। उसने तो एक कैरेक्टर को ध्यान में लिया कि उसकी हाइट को, से फॉर एग्जांपल आपको 10th में भी आया था, सेम एक्सपेरिमेंट यहां पे रिपीट होने वाला है, फाइन। तो उसने हाइट को कंसीडर करा और उसके दो ट्रेट, एक टॉलनेस है, एक ड्वार्फनेस है। तो जब एक कैरेक्टर को उसने कंसीडर किया और उसने हाइब्रिडाइजेशन करा तो उसको उसने नाम दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द नोमेनक्लेचर। इसका नाम मोनो हाइब्रिड क्यों पड़ा उसकी हिस्ट्री मैंने आपको समझाई। So it is a cross which is involving two plant which are different in one character। ये रहा, कोई एक कैरेक्टर
को बेस में रखकर ये एक्सपेरिमेंट करा गया है। क्लियर? Say for example, Mendel has crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. देखिए, one gene मैंने ऐड किया है, मॉडर्न जेनेटिक्स ने ये वर्ड यूज किया है। मेंडल ने तो कैरेक्टर को ही कंसिडर करके ये एक्सपेरिमेंट करा है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट। यहां पे 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे दिए गए हैं। ऊपर हाइट वाला है, नीचे सीड का कलर है येलो ग्रीन, राइट? तो यहां पे क्रॉस किसके बीच में है? टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। यहां पे क्रॉस किसके बीच में है? येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट। डन? ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। डू नॉट वरी, एक्सपेरिमेंट अब आने वाला है। चलिए, अब आता है आपके सामने, आपने जो 10th स्टैंडर्ड में शायद आपको अगर याद है तो सेम एक्सप्रेशन वाज देयर, सेम एक्सपेरिमेंट वर देयर, सेम टर्मिनोलॉजीज वर देयर, બધું એ જ છે જે તમે ભણ્યા છો. All is the similar. Whatsoever you are viewing here already have been explained in standard 10 science book. तो अब मुझे तो आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाना है ना, 10th वाला तो भूल जाना है। तो मेंडल की बात करें, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल हम देखें अगर, अब उसने जो लिया है प्लांट वो है टॉल प्लांट, एज वन पेरेंट, एंड उसको उसने क्रॉस किया है ड्वार्फ प्लांट के साथ। एज अ सिंगल पेरेंट, द अदर पेरेंट आई मीन। तो ये है पेरेंट, दैट इज जनरेशन पी, फर्स्ट जनरेशन पी, राइट? अब से फॉर एग्जांपल ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, हम उसको कंसिडर करते हैं एक मेल प्लांट है, एक फीमेल प्लांट है। अब दोनों को गेमिट्स प्रोड्यूस करने होंगे। ये भी एक गैमीट देगा, से फॉर एग्जांपल इट इज मेल गैमीट। ये फीमेल प्लांट है, साम समझ ले रहे हैं, तो ये फीमेल गैमीट देगा। ये दोनों गैमीट को फ्यूज होना है, ये दोनों गैमीट को फ्यूज होना है। उसके फ्यूजन से उसको सीड्स मिलेंगे, सीड्स उसको जो मिलेंगे वो सीड्स मिलेंगे। वो सीड को उसको इम्प्लांट करके फिर से उसको ग्रो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सी कि वो लंबे होंगे या शॉर्ट होंगे। तो जितने भी प्लांट उसको नेक्स्ट जनरेशन में मिले वो सब थे टॉल प्लांट। जितने लिए उसने, से फॉर एग्जांपल इन दोनों के क्रॉसिंग से उसने 800 प्लांट क्रिएट किए, 800 प्लांट, सॉरी सीड्स बने, उसको 800 सीड मिले। उसने 800 सीड को जब इम्प्लांट किया ना, तो जितने भी प्लांट निकले उसमें से सभी के सभी टॉल निकले। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? है ना? ओके। अब इसके सामने में रखूंगा F1 यानी कि फिलियल 1, फर्स्ट जनरेशन ऑफ पेरेंट, फिलियल 1। तो कोई भी 2 प्लांट को मुझे सिलेक्ट करना है, वहां पर F1 के 2 प्लांट को मुझे सिलेक्ट करना है। एक प्लांट यहां पे मेल होगा, दूसरा प्लांट जो है वो मैं एज ए फीमेल लूंगा।
सो एक में से मुझे मिलेगा मेल गैमीट, दूसरे में से मुझे मिलने वाला है फीमेल गैमीट, राइट। अब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होने वाला है। इनके फ्यूजन से मेंडल को दो वेराइटी में ऑफस्प्रिंग्स मिले थे। आपको मैं पूछता तो आप 4 बोलते, इसलिए मैंने पूछा नहीं। एम आई करेक्ट? मिले 2 उसको, राइट। काफी सारे उसको टॉल प्लांट मिले, एंड कुछ उसे शॉर्ट प्लांट भी मिले, यानी कि ड्वार्फ प्लांट भी मिले। तो ये उसकी हो गई जनरेशन नंबर 2 फ्रॉम द पेरेंट, F2, राइट। F2 के इंडिविजुअल्स, उसकी जो पॉपुलेशंस थी जितनी भी, उसका ऑब्जर्वेशन किया, कंपेयर किया कि टॉल प्लांट अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज है एंड ड्वार्फ प्लांट अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज थे। तो इसका जो रफ कैलकुलेशन था वो था 75% वर्सेस 25%, अप्रोक्सीमेट इतना प्रोपोर्शन उसको मिला था। तो ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन जो उसने ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसने कैरेक्टर को बदला, दूसरे कैरेक्टर को बदला, ऐसे टोटल 7 एक्सपेरिमेंट किए, सब में सेम टू सेम रिजल्ट उसको मिला। अब बारी है ऑब्जर्वेशंस की, कि एट द एंड ये एक्सपेरिमेंट करते करते उसने ऑब्जर्व क्या करा, क्या हमने सीखा इसके ऊपर से। सो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। 2 ही टाइप के एक्सप्रेशन मिलेंगे आपको, या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट ड्वार्फ होगा। ट्रेट 2 ही है। हां, एक आपको यहां पे डिफरेंस मिलता है नंबर का, प्रोपोर्शन का। देखिए, टॉलनेस है ना, वो ज्यादा प्रोपोर्शन में है, ड्वार्फनेस कम प्रोपोर्शन में है। कैन यू सी दैट? है ना। तो उसने क्या ऑब्जर्व करा कि भले ही एक्सप्रेशन 2 है, यहां पर देखिए 2 एक्सप्रेशन है, जब F1 प्रोड्यूस करेंगे ना तो दोनों में से एक ही एक्सप्रेशन, एक ही ट्रेट एक्सप्रेस होता है F1 के अंदर। देखिए, राइट और रॉन्ग? दूसरा हिडन है, एक्सप्रेस नहीं हुआ है। हां, एक्सप्रेस होने वाला है, F2 में हुआ। देखो, F2 में वो निकला ड्वार्फ प्लांट, बट इत्तू सा, ओनली 25। 75% तो फिर भी कौन है? टॉल प्लांट। समझ में आ रही है मैं जो बात करने जा रहा हूं वो, है ना। तो इन दोनों में वीक कौन है बेचारा? ड्वार्फ। स्ट्रॉन्ग कौन है? टॉल। तो ट्रेट जो स्ट्रॉन्ग है उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, एंड जो वीकली एक्सप्रेस होता है उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। खत्म। कोई भी कैरेक्टर के 2 ट्रेट में से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, आप खुद टेस्ट करके ये से फाइनलाइज कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है। आपको कोई अनजान ऑर्गेनिज्म दे दिया जाए, आपको ऐसे ही कोई एक कैरेक्टर को स्टडी करके, अगर you are supposed to decide whether which kind of expression is the dominant one and which kind of expression is the recessive one,
यू इजीली कैन डू इट। यही सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करो तो एट द एंड जो 75 वाला एंड 25 वाला है, तो 75 वाला जो कैरेक्टर आपको मिलेगा ट्रेट कैरेक्टर का, वो होगा डोमिनेंट ट्रेट, और जो 25 का जो ट्रेट होने वाला है वो होगा रिसेसिव ट्रेट। तो उसने पहला जो यहां पे आपको सिखाया चीज वो ये है कि कोई भी कैरेक्टर के ट्रेट्स है उसको कैसे आप नक्की करोगे, कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा डोमिनेंट वन है और कौन सा रिसेसिव वन है, राइट। सो ये आप इस हिसाब से नक्की कर सकते हो। आई होप आई एम वेरी क्लियर, राइट। आपने जो 10th में पढ़ा था वो गलत पढ़ा था ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली मेंडल ने इतना ही किया है। उसको कैपिटल टी के बारे में नहीं पता था भैया, उसको स्मॉल टी क्या है वो नहीं पता था, वो हमने ऐड किया है लेटर ऑन। रेडी? ओके। उसका ऑब्जर्वेशन नंबर 2, उसका ऑब्जर्वेशन नंबर 2 जो उसने इस एक्सपेरिमेंट के बाद करा था, वो मैंने उसको बोला ना, मैंने आपको समझाया अभी कि व्हाट ही थॉट इज कि भाई ऐसा क्यों होता है कि भाई कैरेक्टर हमें मिलते कहां से हैं। तो जब से फॉर एग्जांपल शीहन का जो एग है वो ब्रेक होता है तो चिकन ही निकलता है ना। तो चिकन निकलता है तो उसका एग है वो क्या है, फीमेल गैमीट है, राइट। वो फर्टिलाइजेशन होता है, किससे होता है, मेल गैमीट से होता है। वहां पे स्ट्राइक करा उसने, उसने वो सोचा कि एक्चुअली एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन का लिंक कौन करता है, कौन जोड़ता है उन दोनों को। आपके सामने है बोर्ड के ऊपर, देखिए दो जनरेशन को लिंक कौन करता है, गैमीट्स। कौन लिंक करता है, एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में अगर कुछ जाता है, कुछ जाता है तो वो क्या जाता है, गैमीट्स, वही फ्यूज होते हैं ना। तो गैमीट इज अ मीडियम, मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, कैरेक्टर्स। इसको इसके कैरेक्टर यहां पहुंचाने हैं तो उसका मीडियम कौन बना, गैमीट। So gamete is a medium of transfer of characteristic features from one generation to the other. ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, उसके पहले किसी ने ये नहीं सोचा था। He was the first to observe these. हम इतने प्रिमिटिव ईरा की बात कर रहे हैं, 1860s की बात कर रहे हैं हम, समझ में आ रही है बात। तो तब उस किसी को नहीं पता था गेमिट नाम की चीज भी कुछ होती है और उसका कोई रोल भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। So nobody was having that deep idea about. ओके, तीसरा ऑब्जर्वेशन जो उसने करा, अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारे लिए है विथ रिस्पेक्ट टू नीट पर्सपेक्टिव। आई मीन उसने क्या देखा, देखिए यहां पर कि एक्सप्रेशन दो ही टाइप के, तीसरा कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं। आइदर टॉलनेस है या तो ड्वार्फनेस है। तो वो फिर बैकग्राउंड में गया, यहां पे, यहां से लेके वापस यहां पे गया। दो ही एक्सप्रेशन है, या तो टॉल प्लांट है या तो ड्वार्फ प्लांट है। दोनों फ्यूज होते हैं फिर भी एक ही यहां पे एक्सप्रेस होता है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं होता है। तो यहां से भी कुछ यहां गया है और यहां से भी कुछ यहां गया है। एम आई करेक्ट और नॉट? बट एक्सप्रेस तो एक ही हुआ है ना, दूसरा एक्सप्रेस नहीं हुआ है। गया है, एक्सप्रेस नहीं हुआ है तो सही, बाहर नहीं निकला है। तो जो निकला है वो डोमिनेंट है, नहीं निकला है वो रिसेसिव है। करेक्ट और नॉट? सो उसके हिसाब से वहां से उसने एक चीज निकाली खींचकर कि यहां से यहां कुछ जाता है, यहां से यहां कुछ जाता है, कुछ देयर इज समथिंग विच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल पेरेंट
टू ऑफस्प्रिंग एंड फ्रॉम फीमेल पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वो कुछ के लिए उसने एक वर्ड निकाला है, उसका नाम है फैक्टर। आई होप यू रिमेंबर, 10th में आया था वो फैक्टर, राइट? उसने ये नाम दिया है फैक्टर। क्या नाम दिया है? फैक्टर। तो फैक्टर कितने होते हैं? यहां पर कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। एक फैक्टर यहां से निकला है, एक फैक्टर यहां से निकला है। जो फैक्टर एक्सप्रेस हुआ है उसको उसने नाम दिया है डोमिनेंट फैक्टर। वो ट्रेट को नाम दिया डोमिनेंट ट्रेट। रेडी? सो फैक्टर इज डिफरेंट, ट्रेट इज डिफरेंट। ट्रेट क्या है? फिनोटाइप। फैक्टर क्या है? जीनोटाइप। डू रिमेंबर, ये बहुत टाइनी टाइनी इंफॉर्मेशन है, बट किलिंग इंस्टिंक्ट है उसका। आपके 4 मार्क को खा जाएगी अगर थोड़ी सी भी गलती हुई सोचने में, एनालिसिस करने में क्वेश्चन को, तो आपके 4 मार्क गए। सो ये उसने डिसाइड किया कि 2 जनरेशन के बीच में कनेक्टिंग जो लिंक है वो गैमीट है। मींस गैमीट ही ऐसी चीज है जो पेरेंट्स की कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करते हैं और थ्रू फैक्टर करते हैं। फैक्टर ऐसी चीज है जिसके थ्रू, जिसमें लिखा है कैरेक्टर को, फैक्टर एक्सप्रेस होता है, उसको नाम दिया डोमिनेंट। नहीं हुआ उसको नाम दिया रिसेसिव। तो इतना कंक्लूजन उसने ये एक्सपेरिमेंट से निकाला है ना? इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन जो मैंने आपको समझाया वो यहां पर लिखा है। मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट। सिर्फ टॉल और ड्वार्फ में नहीं, उसने बाकी के 6 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए यही एक्सपेरिमेंट किए और इसीलिए वो नक्की कर पाया कि इसमें डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। राइट? यहां पे आप देखेंगे तो आपके सामने एक टेबल भी रखा है, देखना है आपको सिर्फ। उसमें लास्ट ऑब्जर्वेशन ये वाला, ये टॉल और ड्वार्फ का F2 जनरेशन का फिगर है, उसका मेंडल का फिगर है ये। F2 जनरेशन में उसको 787 डोमिनेंट ट्रेट मींस टॉल प्लांट मिले थे एंड 277 उसको ड्वार्फ प्लांट मिले थे। राइट? ये आपको कोई टेस्ट में पूछने वाला नहीं है, ये तो मेरे सामने आया जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मटेरियल, तो इसलिए मैंने उसको रखा है यहां पर। तो सभी का वो ऑब्जर्वेशन उसने करके रखा है, देखिए यहां पर। फाइन, इज इट वेरी क्लियर? है ना? ओके। ही प्रपोज्ड दैट सम फैक्टर्स, जिसकी बात मैंने अब तक करी वो ये है, उसने नाम दिया फैक्टर उसको, कि ही प्रपोज्ड, उसने प्रपोजल रखा ऑब्जर्वेशन करके, सम फैक्टर्स वर इनहेरिटेड मींस ट्रांसफर होते हैं, कहां से? फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। राइट? उसी फैक्टर को हम आज क्या बोलते हैं? जीन्स। जेनेटिक्स वर्ड तो हमारा है, मेंडल को पता भी नहीं था जेनेटिक्स के बारे में, उसने तो नाम दिया था फैक्टर। फैक्टर तो हम किसी को भी बोलते हैं ना, एक्स फैक्टर नाम नहीं है, जिससे हमें गुदगुदी हो उसको हम एक्स फैक्टर बोलते हैं, है ना? जेन जी, आपकी जनरेशन, है ना? तो XYZ is a common terminology which is getting used. ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर जो आपको दिया गया है उस एक्सप्रेशन की, ये वाला, ये वाला। तो यहां पे तो काफी सारे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को यूज करा गया है। से फॉर एग्जांपल ये टॉल
ये पुराना है अपना मेंडल वाला, ये मॉडर्न साइंस है, होमोजाइगस टॉल, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो अब मैं वहां पे जाता हूं, राइट? आपको लिख के ही समझाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मेंडल ने क्या करा था कि उसने एज अ पेरेंट जनरेशन टॉल प्लांट लिया था, टॉल। हमने उसका नाम दिया होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? दोनों सेम होने चाहिए, फैक्टर्स आर इन पेयर, दोनों हो गए सिमिलर है। टॉल का है कैपिटल टी, कैपिटल टी, तो ये हो गया होमोजाइगस टॉल। डाउट? ओके। उसको उसने क्रॉस किया था ड्वार्फ से, राइट? तो होमोजाइगस ड्वार्फ है वो, मींस स्मॉल टी, स्मॉल टी। चलो, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके। अब बात आती है ट्रू ब्रीड की, जो आगे आया था वर्ड। मैंने बोला था मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ट्रू ब्रीड, चलिए यहां पर जब कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, यानी कि ये एंड ये, इसको कॉन्ट्रास्टिंग पेयर बोलते हैं, कैरीज सेम काइंड ऑफ एलील, दोनों एलील सेम टू सेम है, देखिए यहां पर है, यहां पे देखिए दोनों सेम है। जब दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा, उसको हम बोलेंगे ट्रू ब्रीड। डिसिमिलर है मींस एक ये कैपिटल टी है, एक ये स्मॉल टी है, तो उसको ट्रू ब्रीड नहीं बोला जाता, उसको हाई ब्रीड बोला जाता है। नाम सुना है ना, हाई ब्रीड, सिंपल। ट्रू ब्रीड वर्सेस हाइब्रिड। ट्रू ब्रीड है, होमोजाइगस है, हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस है। डन? याद रहना चाहिए, परमानेंट फिक्स होना चाहिए आपकी ब्रेन के अंदर ये। तो ये हो गया आपका ट्रू ब्रीड, होमोजाइगस टॉल, ट्रू ब्रीड, होमोजाइगस ड्वार्फ। अब हम बात करेंगे उसके गैमेट्स की। चलिए यहां पर वापस आते हैं। गैमेट्स में ये दोनों में से एक टी जाएगा, तो या तो ये पहले वाला या ये दूसरे वाला, दोनों में से एक कैपिटल टी जाने वाला है। फाइन। यहां पर या तो ये स्मॉल टी जाएगा या ये स्मॉल टी जाएगा, दोनों में से एक जा सकता है। अब ये जाए उससे इसको क्या फर्क पड़ने वाला है? जाएगा तो कैपिटल टी ही ना। तो एक साइड से कैपिटल टी आएगा, एक साइड से स्मॉल टी आएगा। अब मेंडल ने क्या देखा, जितने भी है प्लांट वो टॉल प्लांट है। अब हमने जब इसके जीनोटाइप के बारे में सोचा तो हमने क्या उसमें से आउटकम निकाला? कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, और इसको हमने नाम दिया है हेट्रोजाइगस। सो ये टॉल तो है, लेकिन कैसे है? हेट्रोजाइगस टॉल है। फाइन। तो ये हो गया आपका F1 फिलियल 1। सो ये टॉल को, हेट्रोजाइगस टॉल को हमने क्रॉस किया है दूसरे सेम टू सेम हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के साथ, तो इसकी भी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगी। अब इसके गैमेट्स को निकालते हैं, या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। यहां से या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। अब दोनों का इक्वल चांस है। ये भी इसके साथ या तो इसके साथ पॉलिनेशन में क्या बोलते हैं, फ्यूजन कर सकता है।
इसकी भी 50% पॉसिबिलिटी है, या तो इसके साथ या तो इसके साथ फ्यूजन कर सकता है। अब इसी चीज को इजीली एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए हमारे पास एक टेबल की फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए, हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 2। ऑप्शंस कितने हैं? 2। तो 2/2 का एक टेबल बना लेंगे ऐसे। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी मैंने रखा इधर, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी को मैंने रखा इधर। अब ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी यहां आ गया, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी यहां पे आ गया, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी यहां पे आ गया, और ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी यहां पर आ गया। डन। सो जब मैं बात करूंगा F2 जनरेशन की, यहां पर इसमें से जो F2 जनरेशन निकलेगी, वो F2 जनरेशन के अंदर आपके पास होने वाली है 3 टाइप की वैरायटीज। एक वैरायटी है कैपिटल टी, देखिए ये रही। एक वैरायटी है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक वैरायटी है स्मॉल टी। करेक्ट? ओके। 4 में से एक कैपिटल टी है। रेडी? इट इज 1 आउट ऑफ 4। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2 आउट ऑफ 4। स्मॉल टी कितने हैं? अगेन 1 आउट ऑफ 4। ये टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है। फाइन। तो अगर मैं फेनोटाइप की बात करूं तो 75% वर्सेस 25%, अपना मेंडल वाला प्रोपोर्शन हमें मिल गया। सो ये हो गई अपनी F2 जनरेशन। ये जो मैंने मेथड यूज किया है यहां पर देखिए, ये मेथड स्क्वायर वाला, इसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक के अंदर डिनोशन जो हुआ है ये रहा। ये प्यूनेट स्क्वायर मेथड बोला जाता है उसको। प्यूनेट इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट हु हैव एवर यूज्ड दिस मेथड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसके नाम के ऊपर से इस स्क्वायर मेथड को प्यूनेट स्क्वायर मेथड दिया गया है नाम। राइट? तो चलिए फिर से वापस मैं मेरी बैकग्राउंड में रखी हुई टेक्स्ट बुक के ऊपर हूं। राइट? देखिए यहां पर, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ये और ये दोनों के डिफरेंस की। एक्सपेरिमेंट तो एक है लेकिन प्रेजेंटेशन 2 है ना? एक एक्सपेरिमेंट के 2 प्रेजेंटेशन है। तो ये प्रेजेंटेशन जो है पुराना है, मेंडल वाला, और ये अपना वाला है, मॉडर्न साइंस वाला। तो उसको मॉडिफाई करके आपके सामने रखा है। ये जो समझा है आपने, इसको जो मैंने समझाया है, पहले मेंडल वाला समझाया था कि मेंडल ने क्या करा था, मेंडल ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाले उसमें से, उसके बेस के ऊपर से हमने इसको डिजाइन करके मॉडिफाई कर दिया। मेंडल ने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं रखा था, वो हमने रखा है। उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने उसको कोड वर्ड में ढाल के कैपिटल टी स्मॉल टी करा और हमने रिप्रेजेंट किया उसको। उसमें फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने क्या करा, ये प्यूनेट स्क्वायर ऐड करा। अंडरस्टूड? तो ये कोई डिफरेंट नहीं है,
ये भी वही चीज दिखाता है, ये भी वही चीज दिखाता है। ये चीज मेंडल ने जो करी थी वो है, ये हमने उसका मॉडर्नाइजेशन करके रिप्रेजेंट करी है वो है। सिंपल सा लॉजिक है। तो विथ दैट रिस्पेक्ट अगर मैं यहां की जगह यहां पे जाऊं तो मेरे पास दो टर्मिनोलॉजी है, एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप, राइट। तो मेंडल ने जो निकाला था ना वो फिनोटाइप था, जीनोटाइप नहीं था। 75% F2 के प्लांट उसने टॉल प्लांट निकाले थे, राइट। उसके पास तो दो ही ऑप्शन थे ना, मैंने बोला ना, आपको मैं पूछता तो आप बोलते 4, मैंने 2 ही करे थे, याद है। तो उसके पास तो 2 ही विकल्प थे, या तो प्लांट टॉल था या तो प्लांट ड्वार्फ था, तो वो बोलते हैं फिनोटाइप। बट हमने तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी यूज कर दिया, उसको बोलेंगे जीनोटाइप। तो दोनों के रेशियो की बात करनी है आपको, दोनों के रेशियो की बात करते हैं। देखिए मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप के रेशियो की अगर बात करो तो टॉल वर्सेस ड्वार्फ, 4 में से ये रहा आपके सामने, ये प्यूनेट स्क्वायर 1 2 3 4, 4 में से एक कैसा है, कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, लेकिन ये तीनों कैसे है, टॉल प्लांट। एक ही ऐसा है जो ड्वार्फ है। तो 4 में से 3 प्लांट टॉल होने वाले हैं, एक प्लांट ड्वार्फ, ये रहा 3 वर्सेस 1। तो 3:1 का रेशियो, जो उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप का रेशियो। लेकिन मैं अगर जीनोटाइप के बारे में सोचूं, इनको मैं कंसीडर नहीं करूं, टॉल या ड्वार्फ को कंसीडर नहीं करना है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, या स्मॉल टी है, उनका अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं, ये रहा कैपिटल टी कितने हैं, आउट ऑफ 4 1, कैपिटल टी स्मॉल टी आउट ऑफ 4 कितने हैं, 2, स्मॉल टी आउट ऑफ 4 कितने हैं, 1। सो 1:2:1। अब कैपिटल टी के बारे में क्या लिखा है, होमोजाइगस टॉल, राइट। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल है। एंड स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ। वो तो हमने पहले भी लिखे थे, राइट। सो उसका जीनोटाइप का रेशियो जो है 1:2:1 है, और फिनोटाइप का जो रेशियो है वो 3:1 है। तो ये निकला है उसका आउटकम, राइट। तो हम यहां तक अब खत्म करते हैं, 4 बज चुके हैं, आपका टाइम हो चुका है। तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करा है पूरा। अब उसका प्रेजेंटेशन जो यहां पे रखा गया है उसके बारे में हम कल से बात करेंगे, है ना। प्रेजेंट किया है उसने, कैसे प्रेजेंट किया था, और जो ये फॉर्मूला पीछे मुझे दिख रहा है ये वाला, वो कैसे निकला, क्यों निकला, कब निकला, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। रेडी? फाइन, आई विल सी यू, कैच यू लेटर, हैव ए नाइस डे।